شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 511 کے وی فیڈرز کو بند کر کے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ گرڈ سٹیشنز کو بند کر کے بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ این پی سی سی سے فراہمی 2000 میگا واٹ ہونے لگی۔ بجلی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ ہو گیا۔ 511 کے وی فیڈرز کو بند کر کے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ گرڈ سٹیشنز کو بند کر کے بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ اور شہر میں گیس بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ سوئی گیس کمپنی کے سسٹم پر بجلی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ۔ کمپنی نے صبح 6:30 سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہمی شیڈول نافذ العمل کر دیا۔ دوپہر کے اوقات میں انتہائی کم پریشر پر صارفین کو گیس دی جائے گی۔ کمپنی نے ناشتہ اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا۔ صارفین نے کمپریسر چلانا شروع کر دیے۔ سوئی نادران گیس کمپنی کے سسٹم پر گیس کی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے صبح اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے صبح 6:30 سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہمی کا شیڈول نافذ کیا ہے، جبکہ شام کو بھی 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہم کی جا سکے گی۔ صرف 6 گھنٹے گیس ملے گی اور میں کہتا ہوں گیس بالکل بند ہی کر دو۔ عوام میسے مر رہے ہیں ایل پی جی میں، وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کا۔ کھان پین کے حوالے نال گزارا دیکھیں تو کیا گزارا ہو رہا ہے۔ جب گیس ہی نہیں ہوگی تو نہ ناشتہ پکے گا، نہ دوپہر کو روٹی پکے گی، نہ شام کو پکے گی۔ بل اتنے بڑھ کے آ رہے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ دوپہر کے اوقات میں انتہائی کم پریشر پر صارفین کو گیس دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صارفین نے کمپریسر کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ کمپریسر نہ صرف گھر والوں کے لیے خطرناک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں کمپریسر چلنے سے عام صارفین تک گیس پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں گیس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے صارفین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی پر کھانا نہیں پکایا جا رہا، تاہم کمپنی نے بھاری بھرکم بلز بھجوا دیے ہیں۔ گیس نہ گرمیوں نہ سردیوں میں بھی نہیں آئی، ہم بل دے دے کے تھک گئے ہیں، اور باہر سے ایل پی جی ڈلوانے جاتے ہیں، وہ 500 روپے کی کلو دے رہے ہیں اگلے، وہ بھی نرا پانی ہے، گیس نہیں ہے پوری۔ وہ گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ بل وہی پورا آ رہا ہے لیکن گیس نہیں آ رہی۔ اب 550 روپے کلو گیس ہو گئی ہے۔ گیس پوری کریں، بل پورے کریں یا کھانا پورا کریں۔ دکان کا کرایہ بڑی مشکل کور کرتے ہیں، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس بالکل نہیں آ رہی۔ جب گھر فون کرتے ہیں پتہ چلتا ہے گیس نہیں آ رہی، روٹی بازار سے لیتے آؤ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت گھریلو صارفین کے لیے تو گیس کی فراہمی یقینی بنائے، جبکہ شہر میں ایل پی جی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ بھی رکوانے کے لیے اقدامات۔ دودھ فروش اور ڈیری فارمرز آمنے سامنے آ گئے۔ دودھ فروش یونین نے مہنگا دودھ خریدنے سے انکار کر دیا، قیمتوں میں از خود اضافہ مسترد کر دیا۔ اعلان واپس نہ لیا گیا تو سپلائی بند کر دیں گے۔ دودھ فروش یونین نے اعلان کر دیا۔ ڈیری فارمرز نے 16 مئی سے دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے لیٹر اضافے کا اعلان کیا تھا۔ دودھ فروش یونین نے دودھ کی قیمتوں میں از خود اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ دودھ فروش یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمت میں مسلسل اضافہ ناقابل قبول ہے۔ حکومت سرکاری نرخ نامے پر عمل کروائے۔ دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ قیمت میں اضافے کا اعلان واپس نہ لیا گیا تو سپلائی بند کر دیں گے۔ ڈیری فارمز نے 16 مئی سے دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے لیٹر اضافے کا اعلان کیا ہے۔ بھینس کا دودھ 245 جبکہ گائے کا دودھ 195 روپے ہول سیل فی لیٹر ہو جائے گا۔ نئے اضافے سے پرچون کی قیمت 270 روپے فی لیٹر تک ہو جائے گی۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر ہے۔ قیمت بڑھنے سے طلب کم ہو جاتی ہے، جس کا نقصان دودھ فروشوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازم قرار۔ نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کرنے والے کو 7 سال قید 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور۔ قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے اجلاس کی صدارت پیر اشرف رسول نے کی، جبکہ گورنر سردار سلیم حیدر پہلے ہی اس آرڈیننس کی منظوری دے چکے ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور نکاح کے وقت دلہا اور دلہن دونوں کی عمر کم از کم 18 سال ہونا لازمی قرار دی گئی ہے۔
कानून के तहत कम उम्री की शादी को बाकायदा काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है, जिस पर मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर की गई हैं। कम उम्री का निकाह रजिस्टर्ड करने वाले निकाहखां और रजिस्ट्रार को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती के जुमरे में शामिल करते हुए 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। उम्र बच्चों को दूसरे सूबे ले जाकर शादी करने वाले पर भी 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सरपरस्त या कोई भी फर्द अगर कम उम्री की शादी करवाने की कोशिश करे तो 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया है कि निकाह रजिस्ट्रार, वालिदैन और दीगर मुतल्लिका अफराद भी लापरवाही की सूरत में कानून की ज़द में आएंगे। कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को बाकायदा मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नए तरक्याती बजट में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, सोशल सेक्टर के बजट में 18.5 अरब की कटौती, बजट 487 अरब 50 करोड़ से कम करके 469 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए कर दिया गया। कटौती तालीम और सेहत के बजट में की गई। प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 144 अरब 80 करोड़ रुपए दिए गए। दीगर सेक्टर में 34 अरब की बड़ी कटौती। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बजट में इजाफा किया गया। पंजाब के तरक्याती बजट में मुख्तलिफ शोबों के फंड्स में नुमायां कटौतियां। ज़राए के मुताबिक सोशल सेक्टर का बजट 487 अरब 50 करोड़ रुपए से कम करके 469 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें तालीम और सेहत समेत अहम शोबों में तकरीबन 18 अरब रुपए की कमी शामिल है। इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर का बजट 174 अरब 20 करोड़ से घटाकर 144 अरब 80 करोड़ 70 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि सर्विसेज सेक्टर 106 अरब 60 करोड़ से कम होकर 99 अरब 8 करोड़ 50 लाख रुपए रह गया। दीगर सेक्टर्स में भी बड़ी कटौती करते हुए बजट 102 अरब 91 करोड़ से कम करके 68 अरब 81 करोड़ 90 लाख रुपए कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 34 अरब रुपए की कमी शामिल है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के शोबों खुसूसन रोड सेक्टर के लिए फंड्स में इजाफा किया है, ताकि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बरकरार रखी जा सके। शहरी और देही इलाकों में टैक्स का फर्क खत्म, काबिल तफवीज़ दस्तावेज पर इजाफी नहीं होगा। प्रॉपर्टी सरमायाकारी के लिए नया आसान और शफाफ निज़ाम मुतारिफ। रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी असलाहत का ऐलान। काबिल तफवीज़ दस्तावेज पर 12 माह तक सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी आयद। स्टैम्प ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज। काबिल तफवीज़ दस्तावेज को कानूनी हैसियत दे दी गई। कम स्टाम्प ड्यूटी और ई रजिस्ट्रेशन से फ्रॉड की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी इस्लाहात का ऐलान करते हुए स्टाम्प ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज कर दिया, जिसके तहत काबिल तफवीज़ दस्तावेज को कानूनी हैसियत दे दी गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इकरामुल हक के मुताबिक प्रॉपर्टी सरमायाकारी के लिए एक नया आसान और शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत काबिल तफवीज़ दस्तावेज पर 12 माह तक सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी आयद होगी, जबकि इस पर कोई इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। शहरी और देही इलाकों में टैक्स का फर्क भी खत्म कर दिया गया। ज़राई ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी की गई, जबकि गैर रस्मी बयाना और फायर ट्रेडिंग की हौसला शिकनी की जाएगी। मजीद बरां ई रजिस्ट्रेशन के जरिए प्रॉपर्टी लेन देन को महफूज बनाया गया है, जिससे फ्रॉड के इम्कानात में कमी मुतवक्के है। काबिल तफवीज़ दस्तावेज के जरिए प्रॉपर्टी हुकूक किसी और को मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं होगा। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारी में इजाफा और मईशत को फरोग़ मिलने की तवक्को है। यतीम खाना बाजार बिजली की लटकती तारें शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बन गई। सिकंदर चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की लटकती तारें जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगा कीजिएगा। हाँ जी, देखिए जो शहर लाहौर की मेन शाहरा है, जिसे मेन इलाका भी कहा जाता है यतीम खाना, उसके अंदर जो मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर ये हालत है कि यहाँ से गुज़रते हुए अगर आपका हाथ ऊपर लग जाए, जिस तरह ये मेरा हाथ है, और आप अगर यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो मेरे ख्याल से आप सही सलामत वापस नहीं रहेंगे। अभी तो लाइट नहीं आ रही, इस वजह से शायद बचत हो सकती है, लेकिन ये मासूम बच्चे हैं जो इन गलियों में खेल रहे होते हैं, और उनके लिए ये सामने आप हालात देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मीटर लगे हुए हैं जिनको लकड़ियों के साथ बांध के जो है वो यहाँ पे लगाया गया, और ये सारा तारों का जो है यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा इस तरफ देखें तो ये हालत देखें, एक ये लकड़ी का फट्टा लगाया हुआ है, उसके ऊपर मीटर लगाए हुए हैं, और ये तारें हैं, ये अब देख लें ये कनेक्शन हुआ हुआ है और इसके ऊपर टेप सिर्फ चढ़ी हुई है, और यकीनन ये आप समझ लें कि दावत देना है हादसे को। और यहाँ पे ये बच्चे मासूम जो गलियों में खेलते हैं, ये कभी आपने किसी को कहा है? आके विजिट करवाया, उनके बंदे आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लिस्ट लिख के दे दी है, उन्होंने कहा सर्दियों में हो जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। हमारी रिक्वेस्ट है आफर नुमान साहब से कि ये हमारा मसला एक गोला डलना है बस,
गोला डाल जाए, हमारी इधर की लाइन इधर हो जाए मीटरों की। ये सारा गुंजल पटाखे ना, परसों रात बारिश हुई है तो ऊपर से पानी गिरा है, धमाके हैं बहुत ज़्यादा, लोग खौफ से डर गए हैं। हमने फिर भी कंप्लेन भी की है, कोई बंदा नहीं आया। वो कह रहे हैं ये प्राइवेट बंदा ब्लॉक करवा लें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है हाफिज़ साहब नुमान साहब से कि ये हमारा मसला हल करवा दें। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है जी, मसला यकीनन बहुत संगीन मसला है और ये छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी हैं यहाँ पर, और इस पूरी गली के अंदर यही हालात हैं। और बहुत शुक्रिया तौक़ीद करना अपडेट करने के लिए। सर्कुलर रोड पर वाक़ नवाज शरीफ पार्क अरसा दराज से ज़बोहारी का शिकार, पार्क के गिर्द नस्ब हिफाजती जंगली गाय, नशे के आदी अफराद के डेरे, पार्क में घास नायाब, जगह जगह गंदगी के बायस बदबू और ताफुन फैलने लगा। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी जी। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ यकी गेट के पास मौजूद नवाज शरीफ पार्क में। ये पार्क जो है वो एक अरसे से इंतज़ामी गफलत की जो है वो भीड़ चढ़ चुका है। इसके इतराफ़ के तमाम तर जंगले ना सिर्फ जो है वो नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुके हैं, बल्कि इस वक्त पार्क में मगरिब के बाद या अगर रात के औकात में थोड़ा सा देर जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर बात कर ली जाए यहाँ पर इस पार्क की, तो ये पार्क जो है वो एक उजाड़ वीरान जगह का जो है वो मंजर पेश कर रहा होता है। यहाँ पर इस कदर अंधेरा होता है कि यहाँ पर आने का तसव्वुर भी जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, खौफ का बायस बन जाता है। और यहाँ पर पार्क में आवारा कुत्तों की भी भरमार जो है वो नज़र आ रही होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जगह जगह जो है वो पानी जो है वो जमा होता है, जिसके सबब यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश में दिन ब दिन जो है वो इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले तमाम तर अफराद जो यहाँ पर पार्क में आना चाहते हैं वो इंतज़ामिया से अपील करते दिखाई देते हैं कि खुदारा इस पार्क की हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए, ना सिर्फ जो है वो यहाँ से गंदगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब मंसूबा भी कचरे से छुटकारा दिलवाने में नाकाम। शहर भर में जगह जगह कचरे के ढेर। फैसल टाउन में शहरियों को सफाई के लिए बिल देने के बाद भी खुद से सफाई करना पड़ रही है। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब मंसूबा भी कचरे से छुटकारा दिलवाने में नाकाम हो गया। शहर भर में कचरे के ढेर लगे हैं। फैसल टाउन में शहरियों को सफाई का बिल देने के बाद भी खुद से सफाई करनी पड़ रही है। शहरी बिल जमा करवा रहे मगर सफाई नहीं हो रही। 1000 रुपया देते हैं सफाई वाले को, अलग से सफाई वाला आता नहीं है। 11:39 पे कॉल करते हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं, 2 महीने हो गए कॉल कर रहे हैं, आने नहीं। वो मार्केट में सफाई नहीं होती, सरकारी क्वार्टर में सारी सफाई रोजाना होती है, इधर नहीं होती। गली में कचरा ही कचरा होता है। इलाके में मौजूद घरों और दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगे हैं। शहरियों का कहना है कि LWMC के वर्कर्स के साथ साथ प्राइवेट लोगों को भी पैसे देकर सफाई करवाते हैं। मेहनत करते हैं यहाँ पे, बच्चों की रोजी कमाने के लिए बैठे या इनको देने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। ये बंद दुकान का किराया, बंद दुकान है मेरी या साथ, उसके भी साथ भेज दी उन्होंने, डबल बिल मुझे भेजा हुआ है। और कंप्लेन हमने पूरा 1 महीना कंप्लेन की है कि आज सफाई वाला बंदा नहीं है, लेकिन हमने अपना बंदा हायर किया है जो सफाई भी करता है, कचरा भी उठाता है। 5 से 10 फुट की दुकान को भी भारी बिल जमा करवाने पड़ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है कि इलाके में सफाई का काम यकीनी बनवाया जाए। कैमरामैन आगा जैन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। चंद्रा रोड कायदे मिलत कॉलोनी पर तरक्याती काम नामुकम्मल, अधूरे काम के बायस इलाका मईन परेशानी में मुब्तला है। सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के बाद भी ताहाल नई सड़क तामीर नहीं की जा सकी, जिसके बायस सड़क नाहमवार हो चुकी है और आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। दिन इतने इस तरह ही है, घट्टा इन्ना है कि मिट्टी इन्नी है, ठीक है। पानी तो बिल्कुल लांदे ही नहीं ना है इतने, पानी वाले तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है। फिरोजपुर रोड से गड्डियां लैके पानी वाले टुर पैंदे ने, इधर नूं आओ भला जिहड़ा काम करने वाला इधर करो आके। साडी हालत वेख लो, असीं बीमार होए पे हैं। और ये काम अभी बिल्कुल फलाब बंद हुआ पड़ा है। ये मट्टी की वजह से लोग दमे के मरीज हो रहे हैं सर, मैं खुद भी दमे का मरीज हो चुका हूँ। और यहाँ को बताएं कि शहर में ट्रैफिक के बहाव को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस को गश्त के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलेंगी। हुकूमत ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को 50 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऑपरेशनल आलात के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए बेड़े की शमूलियत से ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। शहर में फील्ड ऑपरेशंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा गाड़ियां नाकाफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 7.3 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बोसीदा और नाकारा गाड़ियां मुअस्सर गश्त के लिए नाकाफी हैं। ऑपरेशनल आलात के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए बेड़े की शमूलियत
हैसियत से ऑपरेशनल कारकर्दगी में नुमाया इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलने से पेट्रोल की खपत कम होगी, ट्रैफिक पुलिस के रिस्पांस में बेहतरी आएगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद पॉलिसिंग को फरोग मिलेगा, जबकि माहौलियाती तहफ्फुज और स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी में ट्रैफिक पुलिस का भी हिस्सा डलेगा। सरकारी स्कूलों के फंड्स ताखीर का शिकार हो गए। एडिशनल क्लासरूम्स की तामीर का मंसूबा भी लटक गया। लाहौर में कितने क्लासरूम्स बनाए जाने थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्कूलों को इब्तिदाई किस्त जारी होने के बाद मजीद फंड्स फराहम न किए जा सके। फंड्स की बंदिश के बाइस कई स्कूलों में तामीराती काम रुक गया। लाहौर में भी 250 से जायद क्लासरूम्स की तामीर का आगाज किया गया था। फंड्स की बंदिश से लाहौर में मुतादिद स्कूलों में दीवारें, छतें और बुनियादी ढांचा मुकम्मल न हो सका। माली साल खत्म होने में 1 माह से जायद अरसा बाकी है, मगर फंड्स ताहाल जारी नहीं हुए। स्कूल सरबराहान के मुताबिक मंसूबे में ताखीर से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब टीचर्स यूनियन ने फंड्स की फराहमी और मंसूबे की बरवक्त तकमील का मुतालिबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई। जाली वीज़ा और सफरी दस्तावेजात बनाने वाला मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। कार्रवाई के दौरान 8 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मेन हमारे पास एजेंट था, या आप कह लें कि उसका एक फ्रंट मैन था, उसको जाहिद को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो ये कहानी शुरू हुई, उसने फिर आगे अपने राब्ता एजेंट्स के नाम बताए, उसमें फिर हमने जो है आगे फर्दर उसमें लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक हम इसमें 8 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। ये तमाम लोग जो हैं अवाम उन्नास को जाली वीज़ों का झांसा दे के और उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर और उनको बैरून मुल्क भेजने का जो है वो वादा करते थे और इस सिलसिले में आम आवाम से जो है बहुत भारी रकूम जो थे वो बटोरते थे। इसमें हमारी आम आवाम के जो है ये आपके सामने पासपोर्ट भी रखे हुए हैं, उनके हमारे आईडी कार्ड्स भी हैं जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ये लोग उनसे झांसा दे के और उनके पैसे लेके फरार होने के पैदर पे थे। इसमें हमने टोटल जो है वो तकरीबन 8 लोग अब तक गिरफ्तार किए हैं और इसके अलावा दिन भर अदालती कार्रवाई से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस तौकीर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। बाउंस चेक केस में हाई कोर्ट ने एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा को कल तलब कर लिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुल्जिम जमील अरशद की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा कल पेश होकर वजाहत करें। आवारा कुत्तों के हमलों से बचाव के लिए केस की समाअत। हाई कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी पर अमल दरामद पर केस निपटा दिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम ने समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार मजीद गौरी समेत दीगर फरीकैन अपने वकील के हमरा पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए मौसर और अमली इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद दरखास्त निपटा दी। बिजली बिलों में स्लैब टैरिफ का तरीक़ाकार चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने नेपरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने सालिह खातून इशबाक कामरान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में नेपरा समेत दीगर मुतलका हुक्काम को फरीक बनाया गया है। टिकटॉकर रजब भट्ट समेत दीगर की लड़की से ज्यादती का केस सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यासिर इरफात ने समाअत की तो रजब भट्ट अपने वकील राना मारूफ के साथ पेश हुए। अदालत ने रजब भट्ट, जवाद अली जहांगीर और अब्दुल रहमान को मुकदमे की नकूल तकसीम की और रजब भट्ट समेत दीगर मुल्जिमों को 22 अप्रैल को तलब कर लिया। बाप बच्चे का खर्चा ना देगा तो मुलाकात का हकदार भी नहीं होगा। गार्डियन अदालत में बच्चे के खर्चे का एक ऐसा केस पेश जिसमें अदालत ने बच्चे का खर्चा ना देने पर बाप के वारंट जारी कर दिए। दादी मुलाकात के लिए अदालत पहुंच गई, बोली पोते से मुलाकात उसका हक है। गार्डियन अदालत में बच्चे के खर्चे में दोनों फरीकैन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। गार्डियन अदालत ने दोनों फरीकैन को मजीद बहस के लिए 14 अप्रैल को तलब कर लिया। सेंट्रल जेल में बायोमेट्रिक का मामला लटक गया। कोट लखपत जेल में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम 2 रोज से खराब, मुल्जिमान का बायोमेट्रिक करने में शदीद दुश्वारी। जेल सुपरिटेंडेंट ने सेशन जज और आईजी जेल खाना जात को आगाह कर दिया। लेटर में बताया गया है कि नादरा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिससे मुल्जिमान की बायोमेट्रिक नहीं भिजवाई जा रही। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी अवामी सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने जारी की है, जिसमें हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी पर अवामी इत्मीनान में नुमाया इजाफा जाहिर किया गया है।
सर्वे के मुताबिक 69% अफराद ने मरियम नवाज की क़यादत पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया है और पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग जबकि 31% ने गुड करार दिया। सर्वे में ये भी सामने आया है कि नौजवानों की अक्सरियत वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 56% अफराद ने तरक्याती मंसूबों के आगाज के बाद वज़ीर आला की मकबूलियत में इजाफा तस्लीम किया, जबकि 55% ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार किया। अवामी राय में सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सबसे नुमाया रहा, जबकि खवातीन वेलफेयर और प्रोटेक्शन 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29% और तालीम 27% के साथ अहम शोबे करार पाए। अमन अमान को 26%, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को 25% अफराद ने बेहतर करार दिया। सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर 65% अफराद ने पंजाब को तरक्की की दुरुस्त समत पर गामजन करार दिया। सर्वे में 56% शहरियों ने सैनिटेशन और बल्दियाती सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया। और यहाँ हमको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर बाकायदा मैयत मुंतकिल सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकायदा सर्विस का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई मरहले में यह सर्विस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से मैयत को तकरीम के साथ बिला मुआवजा घर मुंतकिल करने के लिए शुरू की गई है, जबकि जून तक इसका दायराकार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए मुख्तलिफ गाड़ियों की चाबियाँ हवाले की। इस मौके पर उन्होंने एहलकारों को हिदायत की कि वो रज़ा इलाही और अवामी खिदमत के जज्बे से काम करें और सौगवार ख़ानदानों को दिलासा और काउंसलिंग भी फराहम करें। महकमे तामीरात और मवासलात का इजलास सूबाई वज़ीर मलिक सुएब अहमद भरत ने सदारत की। इजलास में महकमे की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में राजा जहांगीर अनवर, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्याती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसलाबाद, चिन्योट रोड, मुल्तान, बिहारी रोड, लोकल रोड प्रोग्राम, वाघा रोड और सड़कें बहाल जबकि दीगर प्रोग्राम्स से आगाह किया गया। वज़ीर आला के मुशीर अली डार से चेयरमैन नेस्ले सैयद यावर अली के वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द ने ऑफिस ऑफ एआई एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स का दौरा किया। वफ़द की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में किए गए कामयाब इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात करने वाले वफ़द में इब्राहिम तारिक शफ़ी, उस्मान ज़हीर समेत दीगर नुमाया शख्सियात शरीक थीं। मुशीर वज़ीर आला अली डार ने कहा कि पंजाब हुकूमत वाइट रिवोल्यूशन के कामयाब मॉडल्स को सूबाई सतह पर अपनाने पर गौर कर रही है, जबकि लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए आजमूदा बैन अल-अक़वामी तरीक़ों को नाफिज करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। अली डार के मुताबिक डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत रूडा प्रोजेक्ट्स पर अहम इजलास। मानसून से कबल तरक्याती कामों का जायज़ा, फील्ड विजिट्स का फैसला। दरिया रावी के 7 मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इदारों को मुश्तरका इक़दाम की हिदायत की गई, जबकि 3 बार की तैयारी तेज़ करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक रहने की ताकीद की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत रूडा के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज और CEO रूडा इमरान अमीन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आइंदा मानसून सीज़न के पेश नज़र रूडा के जारी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। DC ऑफिस के कंट्रोल की कारकर्दगी का जायजा इजलास सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने की। ACHR ने ब्रीफिंग में बताया कि कंट्रोल रूम 3 शिफ्टों में 24 घंटे फ़ाल है और शिकायत का रियल टाइम अजाला किया जा रहा है। इजलास में EDC जनरल, ACHR, CEO हेल्थ और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। ACHR ने ब्रीफिंग में बताया कि कंट्रोल रूम 3 शिफ्टों में 24 घंटे ऑपरेशनल है और तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। हर बड़े इवेंट पर खुसूसी ड्यूटियाँ तफवीज़ की जाती हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। मरहूम इंस्पेक्टर गुलाम इब्न अली की बेवा की बेटे की भर्ती दरख्वास्त पर एडिशनल IG को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। मरहूम कांस्टेबल मुजाहिद अब्बास के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। हेड कांस्टेबल
محمد عرفان کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کو جبکہ 8 سینئر ٹریفک وارڈنز کی پروموشن کی درخواست پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو ریلیف کی ہدایت کی۔ شہید کانسٹیبل تنویر عباس کے بھائی کی بھرتی کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ گیرزن گولف اینڈ کنٹری کلب وائوالوڈا ہال لاہور آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی جانب سے تمام اراکین کی اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت صافی حجاز سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ معروف صحافی حفیظ اللہ نیازی، سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامی، چیئرمین آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن ادیان صادق، لاہور کے صدر نثار صدیقی شریک ہوئے۔ مقررین نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ہماری ٹریڈ ایک بینر پینٹ کرنے سے شروع ہوئی اور آج پاکستان کی انڈسٹری میں بجٹ وائز وہ نمبر 2 پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بڑے ہی اس میں جو ہے محنت، کچھ فیملیز ہیں جن کی 3rd جنریشن آ گئی اس بزنس میں، کافی مصیبتیں بھی آئیں، پرابلمز بھی آئیں، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو لاہور کی ایسوسی ایشن تھی وہ نہ تھکی نہ رکی۔ سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد یاسین خان، معروف بزنس مین عامر قریشی کی لاہور چیمبر آف کامرس علی حسام اصغر شریک ہوئے۔ یاسر خان، سبین عامر، محمد اجمل کسان یونین کے صدر شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کوئی شک نہیں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی افادیت آج کے دور میں کہیں زیادہ ہے۔ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ سے جو لاہور میں بتایا گیا کہ ایک لاہور کی خوبصورتی ہے تو یقیناً اس میں آپ کا حصہ شامل ہے۔ جہاں تک جو مختلف آپ کے مشکلات ہیں ان کے لیے پہلے بھی ادیان صاحب میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہے اور جہاں پہ بھی یہ حکم کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدد کریں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ پورا گورنر آفس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ عابد علی، سرفراز احمد، جمشید اقبال، کرنل ریٹائرڈ سلیم، سمیر پراچا، محمد یاسین، دانیال احمد، محمد آصف علی، ساجد قریشی، محمد ظفر، محمد سعید احمد، ثاقب علی نے بھی شرکت کی۔ سہیل وڑائچ نے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ تاریخی طور پر تو آج ویسٹ لیڈ کر رہا ہے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ میں، لیکن اس کا آغاز اس خطے میں اشوکا نے کیا تھا۔ اشوکا نے سب سے پہلے جو ہے سٹوپاز اور جو سلیں لگائی تھی وہ آؤٹ ڈور دنیا کی پہلی تاریخ کی جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ تھی، اور وہ کندھار سے لے کے پٹنہ تک جو تھی اس نے ایڈورٹائزنگ کی تھی۔ سید اویس نقوی، حفیظ الرحمان، محمد ظفر، عابد رفیق، محمد ثاقب علی، محمد سعید احمد، سینئر صحافی عمران مہر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے افراد اور مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے سی او اور دیگر ارکان کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں سے خصوصی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین اسد کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ کہ لاہور میں بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کے لیے تیار۔ شہر میں 16 سے 18 اپریل تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اور سرگودا میں 16 سے 18 اپریل کے دوران بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی تیز ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 16% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 66 ریکارڈ کیا گیا۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں سرجیکل سمپوزیم، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، چیئرمین شالامار ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر بھی شریک، سی او ڈاکٹر عائشہ نعمان، پروفیسر طلعت وسیم، پروفیسر خواجہ عظیم کی بھی شرکت۔ سرجیکل انکالوجی کلینک کا افتتاح کیا گیا۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 10ویں سرجیکل سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین شالامار ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر، چیف آپریٹنگ آفیسر شالامار ہسپتال ڈاکٹر عائشہ نعمان، ہیڈ آف سرجری شالامار ہسپتال پروفیسر طلعت وسیم، پروفیسر خواجہ عظیم، پروفیسر حماد رانا، پروفیسر اصغر نقی، ڈاکٹر سارہ خالد، ڈاکٹر معاذ الحسن سمیت سرجنز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شالامار ہسپتال میں کینسر کے علاج معالجے کی جدید سہولتوں کے حامل سرجیکل آنکولوجی کلینک کا افتتاح کیا گیا۔
प्रोफेसर तलत वसीम ने कहा कि सिंपोजियम का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी की अफादियत को उजागर करना और नौजवान सर्जन्स को जदीद तकनीक से रोशनास करवाना है। हमारा इंस्टीट्यूट इस चीज के साथ कमिटेड है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने EMR और अपने प्रोसेसेस में इंटीग्रेट करें ताकि पेशेंट बेनिफिट हो। इसी तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रोबोटिक्स हैं वो हमारी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट हों और पेशेंट को उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इन फ्यूचर ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सारे के सारे मेडिकल के प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेसेस जो कि पेशेंट केयर को इन्वॉल्व करते हैं उनमें ये एम्बेड कर जाएगी। प्रोफेसर तलत वसीम ने कहा कि शालामार अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का कयाम अमल में लाया गया है ताकि कैंसर के मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज मुआलजे की मुकम्मल सहूलत मुयस्सर आ सके। हम अपने पेशेंट्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पेशेंट्स जो हैं वो उनको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और हमने जो जितने भी यहाँ पे कैंसर ऑन्कोलॉजी के मरीज हैं उनको हम ट्रीट करते हैं विद वन नोशन दैट एवरी पेशेंट हैज टू गो थ्रू एन MDT प्रोसेस। सिंपोजियम में इजहार ख्याल करते हुए तिब्बी माहिरीन ने सर्जरी के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और रुकन कौमी असम्बली हाफिज मियां मोहम्मद नमान की PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की रहायशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं ने असलम इकबाल की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। समनाबाद में सरदार अयाज सादिक ने मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने मियां असलम इकबाल के भाइयों जावेद इकबाल, अफजल इकबाल और अमजद इकबाल से ताज़ियत की। हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने कहा कि वो दुख की इस घड़ी में ख़ानदान के साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ताज़ियत के मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दिन भर आमद का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला की तरफ से 2026 को यूथ का साल करार देने का मामला। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का खुसूसी इजलास। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल खोकर ने सदारत की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली, DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी, वाइस चेयरमैन और दीगर आला अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में महकमा एजुकेशन के साथ अश्तराक से लाइब्रेरी सेंटर्स के क़याम, सरकारी और निजी स्कूलों में स्पोर्ट्स लैब्स के क़याम के साथ साथ यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। लाहौर रीजन PCB चैलेंज कप के मैचेस से ईस्टर्न वाइट और LRCA ब्लूज़ के दरमियान मैच पहले रोज़ 12 विकेटें गिर गईं। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर LRCA ब्लूज़ की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाकर आउट होगी। अब्दुल माजिद 60, मोहम्मद जैद 60, अली ज़ुहैर 27 और जाफर बिलाल 24 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन वाइट के सफ़ीउल्लाह ने 3 जबकि असद अली, आदिल शौकत और उमर एजाज से 2-2 विकेटें हासिल की। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिक्स डबल्स और मेंस डबल्स के मैचेस का फैसला। SP सिक्योरिटी फयाज हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नौजवान खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जिमनेजियम हॉल नशर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के मैच में राना मकसूद और समिया तारी की जोड़ी ने मोहम्मद तौकीर और सवेरा रफ़ी की जोड़ी को एक के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे मैच में सकी सरवर और मोहम्मद ज़ुहैब की जोड़ी ने मुज्तबा चौधरी और मोहम्मद राशिद के खिलाफ कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और शुजात अली की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और इमरान राठौर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। चौथे मैच में गौहर नफीस और सिविल जज वसीम अहमद की जोड़ी ने अतर मुगर और मलिक नवीद की जोड़ी को हराया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलिक और मेहमान खुसूसी SP सिक्योरिटी फयाज हमीद ने नेशनल प्लेस में इनामात तकसीम किए, जबकि मुदस्सर रियाज मलिक ने मेहमान खुसूसी फयाज हमीद को सवीनियर पेश किया। आशिक हुसैन कुरैशी वेटनर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट उकाड़ा सीनियर्स ने UB स्पोर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाह फैसल ग्राउंड पर UB स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। फारूक 46, रेहान अहमद 23 और मकसूद 21 रन बनाकर नुमाया रहे। उकाड़ा सीनियर्स के मकबूल और आबिद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में उकाड़ा सीनियर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मुश्ताक 42, हम्माद 31 और जुल्फ़िकार बाबर 21 रन बनाकर नुमाया रहे। UB स्पोर्ट्स के रेहान अहमद और अमानत अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप